nobody is making 180 or 190 apartments in 4.5 acres. So that is the biggest luxury. I started working in a call center. 10 फेज में पेपर भी फेंके. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वेंचर हुआ करता था जहाँ पे हम बच्चों को स्कूल ट्रिप पे लेके जाया करते थे और ऑन द वीकेंड्स ये सब फन सिटी एंड ऑल वो भी किया. तो जहाँ से पैसा इकट्ठा हो सकता था पैसा कमाया. किसी बहुत अच्छे दोस्त ने एक नॉकिंग कर दी थी, यार तू ब्रोकर है और मैं बिल्डर हूँ. तो वो एक थोड़ी किक ज़्यादा हो गई थी. बट आई डिडंट टेक इट द अदर साइड. Recently we acquired Antalia's land for 300 crores and that too just 4.5 acres. I was a laughing stock for the whole of Punjab. पागल हो गए, इसको काम करना नहीं आता, नहीं कर पाएगा. हम लड़े, आज भी लड़ते हैं. See, they are my partners. हम बचपन से नहीं एक दूसरे के साथ थे. हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, वो तो हर स्टेप पे हर चीज़ में रहते हैं. उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये आया कि I must create a book. I don't understand when people say that we are very much overpriced. But why don't we compare ourselves to Delhi, NCR, then Bombay, Bangalore, Chennai? We are a city located in the center of Punjab, Himachal, Haryana, Uttarakhand, JNK. सर्वे भी हुआ था तो जिसमें बोला गया था कि इंडिया के अंदर आई थिंक वी आर ऑन द फर्स्ट और द सेकंड नंबर की बेस्ट सिटी टू लिव इन. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना सस्ते की आदत पड़ी हुई है, हम महंगे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. सी यू आर डीलिंग विद पीपल्स मनी. इफ दे विल गेट इनसिक्योर, इफ योर बायर विल गेट इनसिक्योर एंड वट एवर यू प्रॉमिस, इफ दैट कमिटमेंट इज नॉट ऑनर्ड, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना कंपटीशन है. द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स वन चैनल पार्टनर फ्रॉम द अदर चैनल पार्टनर इज द वे ऑफ डीलिंग, हिज ऑनेस्टी, his integrity and his commitment level. Hello everybody. So this is Rahul and we are having a conversation about the real estate trends and we are having a conversation with the real estate mogul of Tri-City who is the founder of Evoke and Horizon, Mr. Gaurav Goyal. So Mr. Gaurav, please tell us a bit about yourself, although everybody knows pretty much about you, but still, please do tell us about yourself. Yeah, Rahul, as you said, I am the successful managing partner of two companies. Yes, and one was founded in 2020, that is Horizon, and the second one is Evoke, which has been, it's a new child and been founded in 24 only. So I'm running these two companies. Okay, so how has your experience been with Horizon till now? Horizon is doing pretty fine and we are doing good. And we have recently we showcased our Simple Residence, which is the first two-core residence of Punjab. And being in Punjab, it's become very difficult to do, some ice-breaking things. So we have tried. It was conceived in 2020 when the real estate was not, not up to the mark, at least in Punjab and in Chandigarh. So we have conceived that time, and now the Simple Residence of Horizon Belmont, which is a two-core complete project. Two-core means there are just two apartments on a single floor. Okay. So this is the first time which is happening in this kind of location. And Horizon is doing good, and we have all the three projects, and they are very much in place. Yeah. And hopefully to complete 2 in 25 and Belmont in 27. Okay, that's great. So Horizon के बारे में तो सब जानते हैं. And recently अभी Evoke का भी काफ़ी मतलब आप एडवर्टाइजमेंट सब जगह देख रहे हो, and ऋतिक रोशन is the brand ambassador for Evoke. So what is Evoke and why Evoke? But why not Evoke? No, that's true. But what is the brand philosophy for that? See, brand philosophy for either Evoke or Horizon, it's completely very simple. I don't want to construct just the buildings. I don't believe in that kind of philosophy. I believe a builder is a builder if he does something for the city he lives in. If I create a building and you just, it's just made with the bricks and some tiles, and it doesn't have some unique element and it is not iconic, to me that person is not a builder. So idea of the brand philosophy behind Horizon or Evoke is quite simple. We want to deliver the most luxurious townships in Punjab. And yes, I'm focused on group housing, and that is the reason I'm doing 30 lakh square feet in Tri-City.
which is again a very good amount of luxury building, which I believe it's the group housing is something which everyone has we feel hesitated to do group housing because it's not easy to deliver 30 lakh square feet or 10 lakh square feet even. So the brand philosophy says that we want to create something which is luxurious, ultra luxurious, and which Punjab has not seen yet. So Horizon and Evoke, they believe in same. The level may be different. So talking about luxury, when you hear luxury, especially in Tri-City area, you have to take it with pinch of salt. क्योंकि ये सब luxury लगा रहे हैं, लेकिन you don't know what you are getting at the end of it. So how is your luxury different from the rest of the others? See, you are very much right. Even जो 25 lakhs का apartment भी sell कर रहा है, and I've seen the hoardings. उस पर लिखा होता है the most luxurious in Punjab, and the cost is 25 lakhs. So we believe we are trying to do certain things that are totally different. First of all both the two brands, they are totally believe in luxury living. If you talk about Horizon, we have 3 projects in our kitty, and bonding with Suzanne, the kind of collaboration with Suzanne, it was again a sense of invitation for the first time in Punjab that a Bollywood celebrity is coming into design. So obviously she would be coming into design the ultimate luxury. And then Belmond is totally 2-core accommodation for the first time in Punjab, as I recently said. And then we are coming up with Kohinoor in Belmond, that is totally 5 BHK duple residences. मतलब एक बिल्डर के लिए आई थिंक वो जो फीलिंग होती है ना कि हाँ यार सर्वगुण संपन्न अगर मैं इसको सेल कर लूँगा तो दिस इज इन Horizon and in Evoke we recently acquired a piece of land in sector 66 and we proudly say it's 0 kilometer from Chandigarh. To me, luxury is not something located in the tiles of the property or the walls or the sanitary ware. To me, luxury is firstmost luxury is the location. Then what kind of address it is. I was traveling in Kingfisher, I believe it's a way back, when Uppal's Marble Arc in Mani Majra, they used to write one Marble Arc is in London and the other one is coming up in Chandigarh. So that was a kind of luxury he created by, that you wanted to live there. Yeah. So in Antalya, the 66 site which I was talking about, we are creating just 200 residences in 4.5 acres. And you compare us with anybody in the whole of Punjab or the North India, I believe I haven't studied it क्योंकि मैं किसी को compare नहीं करता हूँ. मेरे ऑफिस में किसी का ब्रोशर भी नहीं आता किसी कॉम्पिटिटर का. But I'm sure कि nobody is making my kind of builder, nobody is making 180 or 190 apartments in 4.5 acres. So that is the biggest luxury. It will reduce 500 people, the density of 500 people living in, and rest कौन सी टाइल लगानी है, वो कॉलर है या अमेरिकन स्टैंडर्ड है या टोटो है, it's all easy. Yeah. That is not a problem. The conceiving of the project, designing of the project, making it 2-core, making a good clubhouse, making an ease of the parkings, all those things are luxury. Yeah. And also एक चीज़ होती है जो आपने परसीव की है कि जैसे आप लोगों को दिखाना चाहते हो वो चीज़ अचीव करनी भी काफ़ी मुश्किल होती है कि हाउ यू सी इट. And also before diving deep into Horizon and Evoke, so I'll just want to know about your journey, how you started, and how have you managed to come here, at the level you are. So please tell us about that. देखो level अभी कुछ भी नहीं है. Level तो after I will deliver successfully, that day the level would be achieved. अभी sample residence के बाद लगा कि हाँ यार you are into footsteps of being a builder. अभी तक तो मैं खुद को builder भी नहीं बोलता हूँ. So it all started, I came here in 2001. I belong to Sangrur. My family is all full of CAs and we are into industry. And we are doing a good amount of business in Sangrur. My dad has a great reputation over there. I came here to study, but I never went back. I wanted to do something of my own. So obviously being a CA's son, it was always like that, you have to do the CA only. And I was a very studious student. In plus 2, I topped in the whole of Sangrur, and then I got admission in SD College on the very merit list, and even got the scholarship from Mr. Vaid, who used to be the principal at that time. And I remember I was, I believe, 6th in Punjab University in the BCom thing, and was doing CA foundation. But then
दिस आइडिया दैट अगर मैं सीए पूरी कर लूँगा तो वो मुझे वापस ले जाएंगे. सो दैट वाज द थिंग दैट आई गॉट अप फ्रॉम माय फाइनल एग्जाम. Okay. I didn't, I was a brilliant student. Everyone was shocked at my place, my friends, my family, my teachers. So they all came to me, यार कि तो उठाया. यार somehow kick नहीं मिल रहा. Well, I don't want to pursue CA because if I'll do my CA, I believe I'll be struggling in calculations all through my life. तो शायद मैं 4-5 करोड़ की गाड़ी भी कभी नहीं ले पाऊंगा. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही करता रहूंगा. तो मेरे से नहीं हो पा रही है. So then my father said come back to Sangrur and look after the industry. But again, I didn't go back. I said I have to do something of my own. मतलब तो मुझे कुछ करना है. तो then he stopped my pocket money. अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि जब पैसा नहीं होगा तो वापस आ जाएगा. But even then we didn't stop. I started working in a call center. 10 फेज में पेपर्स भी फेंके. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वेंचर हुआ करता था जहाँ पे हम बच्चों को स्कूल ट्रिप पे लेके जाया करते थे ऑन द वीकेंड्स. ये सब फन सिटी एंड ऑल वो भी किया. तो जहाँ से पैसा इकट्ठा हो सकता था पैसा कमाया. एंड आई बॉट माई फर्स्ट होंडा सिटी. आई थिंक इट वॉज इन 2006 विद माई ओन मनी. एंड देन आई टुक दैट कार टू माई फादर एंड आई सेड कि दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, आप रखो इसको. एंड वो कहीं ना कहीं वो एक अकम्पलिशमेंट भी थी कि आपने पैसे नहीं दिए पर मैं आपके लिए गाड़ी लाया हूँ. वो शायद वो गलत भी थी एंड बट मैं रुका नहीं. तो मुझे था कि मुझे कुछ करना है. एंड देन कैपिटल थी नहीं और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ थी जो विदाउट कैपिटल हो सकती थी फॉर द आउटसाइडर्स. सो आई स्टार्टेड रियल एस्टेट इन 2005. Okay. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ चैनल पार्टनर. और बस 2005 से लेकर 20 तक आई वर्कड एज अ चैनल पार्टनर ओनली. यस, सेगमेंटेशन वॉज डिफरेंट. इन बिटवीन इन दीज 15 ईयर्स हर तरह का वक्त आया. रियल एस्टेट में कभी भी ग्राफ एक जैसा नहीं रहता. अगर मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है और जब नीचे आती है तो वो फिर बड़ों बड़ों की वॉट लगा देती है. 2011 to 14 वो सच्चा टाइम कि आई बिलीव अगर 15 ऑफिस चल रहे थे तो 3 ही रह गए थे. 12 लोगों के बंद हो गए थे रियल एस्टेट ब्रोकर्स के. तो उस टाइम पे भी आई स्टार्टेड अ वेंचर कॉल्ड लिबास जिसमें हमने 3 स्टोर्स खोले अक्रॉस द ट्राई सिटी अलॉन्ग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. समहाउ वी कुडंट गो वेल. तो दैट स्टोर इज वेरी मच देयर इन सेक्टर 22. तो वो कपड़े का काम भी नहीं चला. सो देन आई गॉट बैक इनटू रियल एस्टेट एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ चैनल पार्टनर अगेन. ओके. सो आपका एज ए चैनल पार्टनर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट से मिलता हूँ, सीपी फर्म से मिलता हूँ, बिल्डर्स से भी मिलता हूँ, तो कुछ हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि बिल्डर्स वर्ल्ड में कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है. तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होंगी. सो ऐसा था कि आपको वो चीज़ करनी ही थी या मतलब कि चैनल पार्टनर से भी वो सेम चीज़ है कि किक नहीं मिल रही यार, मुझे जाना है यार इस लेवल पे? नहीं, आई वॉज वेरी मच हैप्पी, ओके, वेरी मच कॉन्टेंट बीइंग अ चैनल पार्टनर. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आई यूज टू कम बैक होम एट 6 o'clock and I used to spend time with my children, go out with my friends every day. Those times shisha parlors were there, so we used to all hang out and have shishas in the evening. So that was a very good time I had. ऐसा नहीं था कि किक नहीं मिल रही थी. There were 2 reasons that why I started this building journey. One, my kids were getting, they were getting bigger, they were grown up now. So I have a daughter and I had a thought कि यार very soon after 10 years she's going to get married. So if she is being an industrial guy, all family is having industry in Sangrur. So either I must go back Sangrur because now my time is going to be over. So it is my kids' time which is going to be begun very soon. So वो एक ब्रोकर की बेटी की शादी तो फिर उसी अकॉर्डिंगली होगी. सो दैट काइंड ऑफ अ थॉट केम टू माई माइंड. इट्स नॉट कि आई रिस्पेक्ट माई ट्रेड. आई लव माई ट्रेड एज अ चैनल पार्टनर एंड आई लव माई ऑल द चैनल पार्टनर्स एंड आई टेक केयर ऑफ देम लाइक अ ब्रदर. एंड बट थॉट ये था कि यार मेरे पास इंडस्ट्री है, 500 करोड़ की टर्नओवर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? माई फैमिली इज देयर. तो वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू दैट इज गुड फॉर मी but might not be sufficient for my coming generations. Yeah, might not be ideal. Yes. Let's just say that. So that was the one situation. And secondly ये था कि किसी बहुत अच्छे दोस्त ने एक
नॉकिंग कर दी थी कि यार तू ब्रोकर है और मैं बिल्डर हूँ, तो वो एक थोड़ी किक ज़्यादा हो गई थी. बट आई डिडंट टेक इट द अदर साइड. आई टुक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड ही टेक्सटेड मी लेट नाइट. कुछ लड़ाई हो गई थी हमारी, तो उसने वो जो उसमें मैसेज भेजा तो उसमें उसने खुद को बिल्डर बताया और मुझे ब्रोकर की तरह ट्रीट किया. सो दैट डे तो मैंने थोड़ा अपने आप को वो किया कि यार अब तो करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा. तो इट वाज द नाइट ऑफ 2019 when he did that. So it's been 5 years and today I'm running 2 companies and 6 projects with 2 brand ambassadors for the first time in the vicinity of Punjab. Yeah, time is really well for you actually. We are trying to do. Yeah. And how does your average day look like as a builder? Is it really different from how it was in CP, or is it just about the same? It's totally contrasting. People Really? feel जब आपके पास पैसा आ जाता है या आपका नाम हो जाता है तो इट इज़ ईजी. इट इज़ नॉट ईजी. इट बिकम्स टफ. पहले मैं शायद 11 बजे ऑफिस आता था और कभी मन नहीं भी होता था तो नहीं भी आता था, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ कि मैंने खुद को ही आंसर देना होता था. नाउ द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. आई गेट अप एट 5:30. आई हिट माई जिम एट 6:15. आई कम बैक एट 7:30. Every day I'm office 8:30 a.m. in the morning, and my schedule is like I work 8:30 a.m. to 8:30 p.m. I don't have any time for my friends, for my family. मेरे को ये क्वेश्चन जनरली रोज पूछते हैं लोग कि यार अब क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, टॉर्चर क्यों कर रहा है, खुद को कर रहा है, सबको कर रहा है, हमें भी कर रहा है, हमारी पार्टीज भी बंद हो गई हैं. बट द फैमिली इज गॉट बिगर नाउ. अर्लियर माई फैमिली दे हैड 2 kids, father, mother, wife, and my brother. That was the kind of a family I was living into. Now I have approximately 2,000 families in both the projects who have trusted me, Yes. who have believed in me, who have believed in a channel partner, and who have given their hard-earned money, looking for a dream house, Yes. which I have promised them. Yep. So वो जो thought है ना उस चीज़ का, वो सोने नहीं देता. एंड रिसेंटली वो आजकल क्या रील्स ही सब लोग देख रहे हैं. न्यूज़पेपर से ज़्यादा लोग रील्स देखते हैं. मैं भी देखता हूँ. तो आई वाज लिसनिंग टू मिस्टर शाहरुख खान एंड ही सेड कि आपका असली काम तब शुरू होता है जब आप कुछ बन जाते हो. उससे पहले तो कोई पहचान नहीं है, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तब आपको कोई जानता नहीं है, आप लोगों की नज़र में नहीं हो, आपको सब लोग देख रहे हैं. सो सम ऑफ देम look a kind of an idol in you. Some of them follow you. Some of them wish to follow you. Some of them want to criticize you. Yep. So once आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो, उस मुकाम को संभाल के रखना बहुत टफ है. तो उसके लिए आपको जो वर्किंग है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. So I have to go to both the offices, look after all the projects, look after my team. We have approximately 100 employees in both the companies. It's not easy to manage them. हर एक इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. At the end of the day, it is life. किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के घर पे कोई आ गया है, कोई दुनिया से चला गया है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. किसी के बच्चे के स्कूल के एडमिशन की प्रॉब्लम है, किसी के फादर को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा. सो ऑफ कोर्स दे विल लुक अप टू यू ओनली. उनके लिए तो आप ही हो जो उनका ध्यान रखोगे. सो द डे गेट्स टफर एंड ऑल माई टाइम इज 10 p.m. to 6 a.m. That is my time. Okay. Yeah. Got it. एंड आई हैव सीन कि आप सोशली काफ़ी एक्टिव हो. मतलब मैंने शायद ही कोई बिल्डर देखा होगा जो सोशली इतना एक्टिव होगा. सो इज इट दैट यू अंडरस्टैंड कि पर्सनल ब्रांडिंग की वैल्यू क्या है, और या आपको पसंद है कि हाँ यार. इसमें ना 2-3 बातें हैं. पहला ये है कि yes, I understand the value of a personal and a corporate branding. जिस दिन हमने Horizon को कंसीव किया तो we had a huge debate on this, that whether we shall start for the corporate branding or not. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पहला था, बट मैं उन पहलों में से था जिसने मोहाली या ट्राई सिटी के अंदर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की शुरुआत की. लोगों को होराइजन ग्रुप दिखा, उनको विजिबिलिटी दिखी, उनको प्रोजेक्ट नेम नहीं दिखा, उनको कॉर्पोरेट का नाम दिखा. दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब हैपनिंग फॉर अ स्मॉलर कंपनीज लाइक अस. दैट वाज द सेंस ऑफ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. एंड yes, I do understand the personalized branding, because people, they don't believe in a company first. Exactly. Company is not into existence. It's a person who is into the existence.
सेकेंडली कॉलेज टाइम में आई यूज टू सिंग, ओके तो जिस वजह से मैंने वो एक जो दौर था 2009 से लेके 13-14 तक का, तो मैंने कुछ गाने भी गाने की कोशिश करी. दोज वर नॉट कमर्शियली, बट ये था कि चल यार एक बढ़िया आदमी उसका यूट्यूब पे टी सीरीज के साथ, स्पीड रिकॉर्ड के साथ, वाइट हिल के साथ सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, इवन जानी और बी प्राक के साथ भी पड़ा हुआ है. तो एक मेरी एसेट है कि कल मेरी आने वाली जनरेशन्स देखेंगी. तो वो जब हम गाने को रिलीज़ किया करते थे, आई स्टिल रिमेंबर, उससे पहले एक पूरी जंग हुआ करती थी कि वो इस टाइम पे लॉन्च होगा. देन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ करता था कि वो किस तरह से उसका काउंटडाउन चलेगा, और फिर गाना आने के बाद उसमें कितने व्यूज़ होंगे वो हम काउंट किया करते थे, उसको शेयर किया करते थे. एंड वी डिड अ सॉन्ग जिसमें मेरे जो डायरेक्टर थे वो बॉम्बे से थे. ही केम हियर एंड वो उन्होंने मेरे को एक ना साफे वाली लुक दी रणबीर कपूर को देख के रॉकस्टार मूवी में. तो मैं 15-20 दिन तो वो साफा डाल के वेन्यूज़ में भी घूमता रहा दोस्तों के साथ. तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है व्हेन आई पोस्ट समथिंग. तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा एक पैशन था जो शायद आज मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो जिंदा रहता है जब मैं पोस्टिंग्स करता हूँ. तो और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को क्या चाहिए? मोर देन मनी ही नीड्स एक्नॉलेजमेंट, acknowledgement, yeah. राइट? सो व्हेन यू आर बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर योर पोस्टिंग्स, फॉर योर गुड अमाउंट ऑफ वर्क, तो वो एक उसको क्या है, उससे एक किक मिलती है, Yeah. उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है. बिल्कुल. एंड देन यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग मच बेटर. True. तो शायद वो भी एक रीज़न है पोस्टिंग्स का. No, that's really impressive कि मुझे नहीं पता था कि आपके songs भी हैं इतने बड़े बड़े labels के साथ. That's really impressive. So talking about real estate builders and how the life is like, जब हम यहाँ पे ट्राई सिटी में 2 साल पहले मैं नया आया था, तो I used to see these huge buildings and get to know that ये इतना पैसा कौन लगा रहा है यार, मतलब एक बंदे के पास इतना पैसा. I was being stupid or dumb, let's just say, but I want to know कि ये builders का जो ये प्रोसेस होता है कैसे होता है, कैसे कोई स्टार्ट करता है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करनी, उसके बाद अप्रूवल्स, अ लॉट ऑफ स्टफ इज इन्वॉल्व्ड. सो कैन यू नो वॉक मी थ्रू दैट प्रोसेस? हाउ इज इट लाइक? इट्स नॉट इजी. फर्स्ट ऑफ डेफिनेटली ऑल नॉट इजी. ये लोगों को लगता है कि आसान है, एंड आफ्टर द रेरा एंड सच अ वाइड कंपटीशन एंड अबव दैट सोशल मीडिया, उसके बाद ये और ज़्यादा टफ हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, True. right? And capital has to be a good amount of capital. It is because we are doing kind of projects we are doing, they are all capital intensive projects. अगर आपके पास पैसा है and then acquiring the land is not a problem. Yes, there are professional people, there are lawyers, and there is a good team you need to hire, and they'll guide, they will evaluate. But जो calculation उसकी है वो आपको ही करनी है. देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये लैंड मेरी इतने की आएगी, इस पे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ये आएगी, एंड दिस इज द प्राइस यू हैव टू सेल इट फॉर, एंड अबव दैट इस प्राइस पे देने के बाद इन्वेस्टर को भी आपको यू हैव टू मिंट मनी फॉर हिम एंड टू द चैनल पार्टनर ऑल्सो. सो ये जो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक यही मेरे जैसे आदमी को अच्छा या बुरा बनाता है कि ये एक गुण है जो आपको अपने अंदर पैदा करना है अपार्ट फ्रॉम द मनी. कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास पैसा तो है बट उनके पास ना वो डेयर नहीं है करने का. वो पंजाबी में कहते हैं वो गुर्दा नहीं है कि वो कर नहीं पाते. एंड कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ गुर्दा ही होता है तो पैसा नहीं होता. और कई बार क्या होता है दोनों चीजें होती हैं पर माइंड नहीं होता, समझ नहीं होती, दिमाग नहीं होता. तो यू नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल द 3 things. दैट इज वन, मनी, एंड देन सेकंड इज दैट डेयर इन यू, एंड द थर्ड थिंग इज कैलकुलेटिव माइंड. क्योंकि इन तीनों के बिना नहीं हो सकता प्रोजेक्ट आज की डेट में. वो टाइम चले गए कि जब इट वाज अ बिल्डर डोमिनेटेड मार्केट. अब तो फार्मर भी जब आपको लैंड सेल करता है ही सेल एट हिज ओन टर्म्स. अब वो इजी नहीं रहा. रिसेंटली वी एक्वायर्ड अंतालियाज लैंड फॉर 300 crores एंड दैट टू जस्ट 4.5 acres. आई वाज अ लाफिंग स्टॉक फॉर द होल ऑफ पंजाब कि पागल हो गया. 300 crores फॉर अ 4.5 acres एंड पागल हो गया, इसको काम करना नहीं आता, नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा. मतलब माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कुछ कोलीग्स, मेरी टीम को, या बहुत लोगों ने बड़ा कुछ कहा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड अ कैलकुलेशन इन माई माइंड जो मुझे शायद किसी को बतानी नहीं है.
Okay. देखो किसी को जवाब देके कुछ नहीं होता, आपका काम बोलेगा। जब आप परफॉर्म करोगे ना, तो जिंदगी का मंत्र मैंने ये देखा कि इट्स अ परफॉर्मेंस दैट स्पीक्स, बी इट एनीवेयर, बी इट इन स्कूल, be it in college, be it in business, right? Be it in your life. If you're earning good, you're able to take care of your goods, then you're a good father. True. If you're not having anything and you're not able to take care of your family also, you're not a good human being, right? So it's the performance at the end of the day that matters. True. And Gaurav, so I hope you don't mind. थोड़ा मार्केट में ना 2019-20 के अराउंड, इस टाइम के अराउंड कुछ रूमर्स थे कि आप जो इवॉक आपने स्टार्ट किया है वो इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि होराइजन में कुछ दिक्कतें चल रही थी, मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें थी। मतलब ये चीज़ें कहाँ तक सच्ची है, और प्लीज़ इफ़ यू कैन क्लैरिफाई अबाउट दैट। देखो, you are very much right. Not in 2019-20, but it was recently in 23-24. ओके। 23 के मिड के अंदर ये र्यूमर्स मार्केट में आए थे। देखो, दिक्कतें आई बिलीव चलती रहनी चाहिए। दिक्कतें चलने का मतलब ये है कि हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी आर इनटू रियल एस्टेट, राइट? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना बड़ा लॉजिकल है। अब आप भी एक बिजनेस रन कर रहे हो सकता है यू वांट टू स्पेंड समथिंग ऑन अ काइंड ऑफ अ कैमरा, कि यार ये कैमरा हमें ले लेना चाहिए, हम हर बार रेंट पे करते हैं तो हम खरीद के रख लेते हैं। एंड योर पार्टनर माइट सेड कि नहीं यार अभी नहीं करते हैं, या हम इस कंपनी का ले लेते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो वो डेफिनेटली रहता है, आज भी रहता है। वो आई थिंक किसी फैमिली के अंदर भी रहता है, फादर और सन के रिलेशनशिप में भी हमेशा रहता है। बट हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा डिफरेंस हो गया विच इज़ हैम्परिंग द प्रोजेक्ट। हम लड़े, आज भी लड़ते हैं, पर वो लड़ाई क्या है कि बेटर क्या है। कई बार उनकी सोच बेटर होती है। अब सी दे आर माई पार्टनर्स, हम बचपन से नहीं एक दूसरे के साथ रहे। आज के समय तो ये है कि हम जिसके साथ बचपन से रह रहे होते हैं उसका भी समझ नहीं आती। बिल्कुल, राइट? 2020 and 24, 4 years we have survived together and that is a very good of amount of time. हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, वो तो हर स्टेप पे हर चीज़ में रहते हैं। बट यस, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये आया कि आई मस्ट क्रिएट ए बुक, देयर इज़ नो डिनाइल टू इट। वो इसलिए आया कि वी आर सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड पीपल, राइट? अब आप किसी के साथ काम कर रहे हो या वो आपके साथ काम कर रहे हैं, देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज कि आप ताउम्र कर पाओगे। अच्छा चलो आप कर लोगे, यू आर अ ओल्ड स्कूल गाय, क्या आपके बच्चे कर पाएंगे? सो दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरीवन इन द किटी। वी आर डीलिंग विद पब्लिक मनी, वी आर डीलिंग विद पीपल्स ड्रीम्स। तो जब भी आपकी कोई टीम है, वो आपस में इट शैल बी लाइक दिस इन एवरीथिंग, इन एवरी डिसीजन यू मेक, इन अ थॉट पैटर्न। बिकॉज कभी ऐसा नहीं होगा कि गौरव हर डिसीजन सही लेगा या राहुल हर डिसीजन सही लेगा। कभी डिसीजन गलत भी होगा। आउट ऑफ द 10 डिसीजन यू टेक, 1 माइट बी रॉन्ग, 2 माइट बी रॉन्ग। एट दैट टाइम वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। एंड जब भी आप पार्टनरशिप में काम करते हो, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड सहनशीलता, पेशेंस बहुत चाहिए। सो आई थिंक अगर हम लड़े होते तो हम लड़ गए होते, तो शायद आज ना हम होराइजन के तीनों प्रोजेक्ट्स का स्टेटस देख पाते, जिसमें कि रेरा आ चुका है, सैम्पल इज वेरी मच देयर एंड acceptance is very much there. Yes, we decided that we might or we might not work in future. That will depend upon the rest of the journey. अगर लड़े होते तो लड़े होते, हम लड़े नहीं, हम समझदार थे, हम बैठे, हमारे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, हमने उनको एक पेपर पे जॉट डाउन किया, हमने उसको ख़त्म किया। Nobody went out, nobody came in. Horizon is very much there. Horizon is doing the same kind of thing. The amount of marketing or the amount of presence that might be different. वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने अब इवोक किया तो आई हैव टू गिव माई टाइम ओवर देयर। बट अभी हमने इवोक का एक सेलिब्रेशन किया था, एनुअल सेलिब्रेशन, उसमें भी मैंने यही कहा था कि गौरव होराइजन से
या होराइजन गौरव से कभी अलग नहीं हो सकता. उसका एच तक भी मेरा कंसीव किया हुआ है. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ड्राइंग विच आई डिड ऑन अ पेपर. तो डिस्टर्बेंसेज हैं, आती रहेंगी, आती रहनी चाहिए. उसका मतलब है आप काम कर रहे हो. खड़ा पानी भी स्मेल करता है. आई थिंक देयर इज अ सेइंग. सो अगर रिलेशनशिप भी खड़ा हो जाएगा ना, उसमें वो कुछ Stagnance आ जाती है. क्रिस्पनेस नहीं रहेगी, उसमें वो स्वीटनेस नहीं रहेगी, थोड़ा सार भी होना चाहिए. तो वो मज़ा आता है फिर मिर्ची के साथ. वो चलता रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. बट इट इज़ रियली ग्रेट कि आप सोचते हो कि एटलीस्ट व्हाट इज प्रॉमिस्ड टू आवर इन्वेस्टर्स और आवर एंड यूजर्स, दैट शुड बी डिलीवर्ड नो मैटर कि आपके इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है. दैट इज अ होल सेपरेट थिंग. That is our motto Yes. in Horizon and in Evoke since day one. Yeah. देखो डिस्टर्बेंसेज हमेशा आएंगी, बिल्कुल. बट दैट डिस्टर्बेंसेज शैल नेवर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट. Exactly. एंड अगर आपको किसी टाइम पे लगता है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो या अच्छे नहीं हो पाओगे, तब भी आपकी मॉरल लाइबिलिटी है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को उस वजह से हैम्पर नहीं होने दोगे. दैट इज योर पर्सनल फीलिंग. Yeah. और जो कि क्या होता है, वो एक मोमेंट्री होती है. वो हम बाद में क्या होता है, आधे घंटे बाद वी रियलाइज कि यार ये मैंने गलत कह दिया. Yes. या सामने वाला भी बोलता है कि ये मैंने गलत बोल दिया. एंड देन वी आर अगेन, बट व्हाई शैल इट हैम्पर एनी प्रोजेक्ट? बिल्कुल. सो दीज आर ऑल रूमर्स. गौरव इज वेरी मच देयर एंड गौरव वुड बी वेरी मच देयर. एंड ये सब रूमर्स हैं जो शायद ना वो लाइक वी स्टार्टेड कि जब आप बड़े हो जाते हो तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है. तो अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है. तो अब उसमें ये तो नहीं हो सकता कि लोग सिर्फ अच्छा ही बोलेंगे. बिल्कुल. वो लोग तो हर तरह की बात बोलेंगे. वो तो अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे. तो बात इतनी है कि बस वो जब आपके बारे में बोल रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जिक्र कर रहे हैं. तो जिक्र होते रहना इट इज अ चाहिए. पार्ट ऑफ द गेम. जिक्र होते रहना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा लगता है. एंड आपने अभी बताया कि जो होराइजन है वो आपने खुद एच ड्राइंग पे मतलब बनाया. तो ये होराइजन नाम के पीछे और इवोक नाम के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मतलब क्या है इनका? देखो होराइजन जब हम होराइजन कंसीव कर रहे थे कि यार कुछ अच्छा सा नाम चाहिए. एंड वो नाम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट भी हो और जिसको सुनने के बाद ना स्माइल आए. आइडिया वाज दैट फॉर एग्जांपल इफ यू लिसन टू डोमिनोज तो एक ना स्माइल आता है मन के अंदर. एंड दैट टाइम देयर वाज अ कंपनी, देयर इज अ कंपनी बाय माय डियर फ्रेंड सय्यम, जुबली. व्हेन आई हियर जुबली तो एक स्माइल आती है कि यार जुबली. सो मैं कुछ ऐसा नाम ही सोच रहा था. एंड देन दिस थिंग क्लिक टू माई माइंड, होराइजन. होराइजन का मतलब है विजन. और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, इट्स अ प्लेस आई थिंक वेयर अर्थ एंड यूनिवर्स मीट्स समवेयर इन बिटवीन. बट था क्या, सोच. मेरे लिए होराइजन का मतलब था सोच. तो वो मेरे को बड़ा अच्छा साउंड किया कि यार नहीं, लेट्स फ्रीज दिस वर्ड. सो होराइजन वाज कंसीव्ड लाइक दिस. Evoke, again the thought was same. The name shall be modern. The name shall be short. And dictionary meaning इसका था the first ray of light. But the otherwise जो meaning मैंने conceive किया, जितना study किया, वो था कुछ भी उत्पन्न होना. You know, like the building comes out, the sun rays come out. So idea was to conceive. तो मेरे लिए क्या था कि एक नई सोच का उत्पन्न होना, एक नए होराइजन का इवोक होना. सो दिस काइंड ऑफ द मीनिंग फिलोसफी इज देयर बिहाइंड बोथ द ब्रांड्स एंड द नेम्स. एंड दे आर शॉर्ट, दे आर क्रिस्पी, दे आर मॉडर्न. एवरी काइंड ऑफ अ जनरेशन दे कैन gel with both the brands. Okay, nice philosophy. By the way, both are really good names. Thank you. And now talking about the Tri-City market, the real estate market of Tri-City. हाउ डू यू सी इट? क्योंकि मुझे अभी जैसे मेरी परसेप्शन है जो कि मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है. मतलब अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे. इफ़ यू टॉक अबाउट द एटलीस्ट द मेन एरियाज, इवन द रिमोट एरियाज ऑफ ट्राई सिटी हैव बिकम रियली एक्सपेंसिव. तो आपको नहीं लगता कि किसी ये ओवर प्राइस्ड और किसी टाइम पे जाके ये मार्केट मतलब स्लम्प करने वाली है? देखो राहुल, आई डिफर. मुझे लगता है कि बहुत अंडर प्राइस है. रियली? If you I don't understand when people say that we are very much overpriced. But why don't we compare ourselves to Delhi, NCR, then Bombay, Bangalore, Chennai, and all these metros? Why don't we want to be a metro? We are a city that is a UT and located in the center of
Punjab, Himachal, Haryana, Uttarakhand, J&K. So these 5 states are our neighboring states. We are having an international airport. We are having access to Kasauli in just 1 hour drive, right? And the kind of the culture, the law we have in Chandigarh and Tri-City, that is, one of the best in the whole world. The kind of living we get here, the kind of distance, if you have to travel from one edge of Mohali to Panchkula, it takes 30 minutes to meet a friend and grab a cup of coffee, which otherwise is impossible in Delhi or Bombay or Bangalore. It takes a lot of time. Yeah. सो आई बिलीव देखो सर्वगुण संपन्न सर्वगुण जगह है कि जहाँ पे सब कुछ है. बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, देन बेस्ट ऑफ द लिविंग. मतलब ये तो शायद आई थिंक कुछ सर्वे भी हुआ था तो जिसमें बोला गया था कि इंडिया के अंदर आई थिंक वी आर ऑन द फर्स्ट और द सेकंड नंबर की बेस्ट सिटी टू लिव इन. ओके. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना सस्ते की आदत पड़ी हुई है कि जब से हमने चंडीगढ़ को कंसीव किया या पंजाब में देखते हैं तो हम महंगे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. अभी एक्सपेंसिव नहीं हो रहा. बेसिकली क्या हो रहा है, लैंड प्राइसेस आर शूटिंग अप. यस, ऑब्वियसली जो चीज़ें आ रही है ना, जो पंजाब को जो अब लग्जरी आप बात कर रहे हो, वो लग्जरी तभी मिल पाएगी इफ़ यू आर रेडी टू स्पेंड ऑन द अमेनिटीज एंड द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. ट्रू. तो वो जब चीज़ें एक बिल्डर लेके आता है उसकी एक कॉस्टिंग है. इफ़ आप हैविंग ऋतिक ऑन बोर्ड, ऋतिक की एक कॉस्टिंग है. अब वो कॉस्टिंग इफ़ यू बिलीव कि गौरव पे करेगा, नहीं पे करेगा. वो कोई बिल्डर पे नहीं करता, वो कोई ब्रांड पे नहीं करता. इवन अगर कोई हेयर ऑयल की भी ब्रांडिंग कर रहा है ना तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट के अंदर लोडेड है. बट यस, उसके साथ उसको एक वैल्यू मिलती है. बिल्कुल. आप आउटस्टैंड करते हो एंड कल आपकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी राइज करती है. तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ अभी बहुत अंडर प्राइस है. गुड़गांव के अंदर अगर आज आप देखोगे तो 15,000 से लेके 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी रेट है. कैमिलियाज में अभी एक पेंट हाउस बिका 190 करोड़ का और यहाँ पे पूरी लैंड आ जाती है 190 करोड़ के अंदर. 190 करोड़. 190 करोड़. इट्स वेरी मच देयर ऑन द इंस्टाग्राम एंड इट्स ऑन ट्रेंडिंग कि 190 करोड़ का मकान इन DLF कैमिलियाज हैज बीन सोल्ड आउट. सो इफ यू वांट टू rise up to the metros, you have to spend also. अगर आज आप किसी बिल्डर को बोलोगे कि मुझे वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज या फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी पॉकेट भी उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी. आज चंडीगढ़ या सबर्ब्स के अंदर 3500 से लेके 6,000 रुपये का रेट है पर स्क्वायर फीट एंड इन द सेंटर ऑफ द सिटी आई बिलीव इट वुड बी अराउंड 6,000, 7,000 to 10,000, 12,000. We are daring to sell at 15,000 in Antalya and I very much believe कि हम कर लेंगे and हम already खैर कर भी रहे हैं. तो चंडीगढ़ I look forward for when I talk about Chandigarh it means the Tri-City. So I look forward from 10,000 to 20,000 in the next 5 years. So that is going to be there and audience बहुत. हाँ, the only thing we are lacking is the employment and industry. वो दो चीज़ें नहीं है. अगर ये दो चीज़ें होती तो आज हम गुड़गांव से भी आगे होते. तो क्या आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों, 20 सालों में हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, हम उतनी जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे इस एरिया में, या इंडस्ट्रीज आएंगी काफ़ी सारी यहाँ? देखो, इंडस्ट्री आई कांट से, अदरवाइज द लॉट्स ऑफ हब्स आर कमिंग अप. इंडस्ट्री के लिए क्या होता है ना, लैंड प्राइस जो इस टाइम ट्राई सिटी की है वो बहुत ऊपर चली गई है. आज इस प्राइस पे लेके इंडस्ट्री कोई बिल्डर जोन नहीं काटेगा या डेवलप नहीं करेगा और किसी इंडस्ट्री को भी वो सूटेबल नहीं होगी. वी हैव बद्दी इन द सराउंडिंग्स एंड आई एम अमेज्ड कि कसौली लोग चंडीगढ़ में गिनते हैं पर बद्दी को चंडीगढ़ में नहीं मानते. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स. तो बद्दी की जो इंडस्ट्री है वो चंडीगढ़ की क्यों नहीं है? वो लोग रहते तो चंडीगढ़ में ही आके है ना. तो जितने उनके सीनियर्स हैं एंड ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट द बिलो मिडिल क्लास और द लोअर क्लास कम्युनिटी, बट ऑल ऑफ द पीपल दे आर लिविंग इन चंडीगढ़ एंड देन नालागढ़ इज देयर एंड देन डेराबसी इज देयर एंड अभी राजपुरा साइड पे भी इंडस्ट्रियल टाउन डिक्लेयर हुआ एंड देन दिस प्लेस कॉल्ड व्हेन यू गो टू अंबाला देन शंभू बॉर्डर के पास भी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है. देखो, शहर के अंदर कभी इंडस्ट्री नहीं आ पाएगी पर ये जो सबर्ब्स पे आ रही है ये लोग कहीं तो रहते हैं और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो तो चंडीगढ़ में ही रहती है. तो इंडस्ट्री इज वेरी मच देयर. बट हाँ, वैसी इंडस्ट्री नहीं होगी कि यार 100 एकड़ के अंदर प्लांट लगा हुआ है, 200 एकड़ के अंदर प्लांट लगा हुआ है. एंड रिगार्डिंग द जॉब एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक
वो मुझे तो दिक्कत नज़र आज भी नहीं आ रही। इतनी तो रियल एस्टेट कंपनीज ही हैं कि जॉब एम्प्लॉयमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। एंड देन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने आज की डेट में सबको एक सेल्फ सफिशिएंट प्लेटफॉर्म दे दिया है। नाउ यू आर सिटिंग इन अ नाइस स्टूडियो एंड दिस इज ओन्ड बाय यू एंड यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट एंड हैंडलिंग मार्केटिंग फॉर अदर पीपल। तो आपने जॉब जनरेशन तो खुद ही की हुई है। दिस इज योर ओन बिजनेस विच यू हैव थॉट अबाउट, बट येस अगेन आपने कुछ हटके सोचा है। अब हर आदमी वो नहीं सोच पाता, तो वो सोचना तो खुद को पड़ेगा। इंडस्ट्री इज वेरी मच देयर एंड इट विल कीप इम्प्रोवाइजिंग। चंडीगढ़ के अंदर कभी नहीं आएगी, सराउंडिंग्स में ही रहेगी। एंड रिगार्डिंग जॉब एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ती रहेगी। मेक सेंस। सो आई नो कि आपका मोस्टली एक्सपीरियंस 15-16 ईयर्स सीपी एज अ सीपी भी रहा है, तो हमारे जो मतलब इवन क्लाइंट्स या हमारी ऑडियंस है वो सीपीज की भी काफ़ी है। तो आज की डेट में जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, तो आज की डेट में ऐसे क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए एज अ सीपी, या कोई स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी है और वो स्ट्रगल कर रहा है कि यार मतलब हो नहीं पा रहा है उससे, तो व्हाट इज इट दैट ही शुड डू कि जिससे ही कैन फ्लरिश, ही कैन थ्राइव इन हिज बिजनेस? सीपी, यू वांट मी टू आस्क फॉर अ सीपी? चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स। देखो, मैं एज अ चैनल पार्टनर, मेरे को मेरे फादर ने ये बात बोली थी 2006 में, बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू रियल एस्टेट एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो व्हेन आई सेड कि मुझे रियल एस्टेट का काम करना है, तो ही सेड मी 2 थिंग्स, और वो मैंने आज तक बांधी हुई है। फर्स्टली ही सेड कि तेरे पास 1 करोड़ रुपया आएगा जिसके अंदर तेरी कमीशन 1% होगी, लाख रुपया, और वो आदमी तेरे पे ट्रस्ट करता है, तो ही विल गिव इट टू यू सो दैट तू उसके लिए वो प्रॉपर्टी बाय करके पेपर्स उसको डिलीवर करे। तेरा उस पर लाख रुपया ही है, तो वो 1 लाख ही खर्च करना है। वो 99 लाख जो है ना वो उसके हैं, उसमें कोई अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ही सेड कि वो जो 1 लाख रुपए हैं वो तेरे पूरे साल की इनकम है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सीजनल है। आज डील होगी तो कल नहीं होगी। तो कल अगर तू ये सोचेगा कि लाख रुपए आ गए और आज शाम को मैं जाता हूँ 17 या इलांटे, तो उस टाइम पे नहीं था, और मैं जाता हूँ जाके 2 लाख की घड़ी ले आता हूँ, 1 लाख की EMI चला लेता हूँ, तो यू विल बी डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो अपनी चादर के अकॉर्डिंगली पैर पसारी हो। थर्डली, अगर तूने किसी के पैसे देने या किसी से लिए हुए हैं या किसी की कोई कमिटमेंट की हुई है, उसको एक दिन खुद पहले आपने कॉल करके बोलना है कि भाई कल नहीं हो पाएगा, कल की डेट थी, इसको 2 दिन आगे कर दो। See, you are dealing with people's money. Yes. If they will get insecure, if your buyer will get insecure, and whatever you promised, if that commitment is not honored, आप survive नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना competition है। The only thing that differentiates one channel partner from the other channel partner is the way of dealing, his honesty, his integrity and his commitment level. और ये 3 चीज़ें मेरे को ज़िंदगी के अंदर इतनी काम आई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मेरे को एक भी, पंजाबी में बोलते हैं, एक भी लांबा आ गया तो मैं तेरे कान पकड़ के तेरे को वापस ले आऊँगा और आके फैक्ट्री में बैठ जाइए। सो अगर आपकी डीलिंग सही है, अगर आपका कमिटमेंट लेवल सही है, अगर आप ईमानदार हो अपने काम के साथ और क्लाइंट के पैसे के साथ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इतने घर रोज बिकते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स डेली आ रहे हैं, राइट? इतनी ऑडियंस है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करेगा आपका बिहेवियर। ट्रू। सो बेसिकली एक ट्रस्ट क्रिएट करना, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, अच्छे रिलेशनशिप्स नर्चर करना, ये उसकी मनी को सेफ रखना। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर चंडीगढ़ और द ट्राई सिटी एरिया, और ईवॉक और होराइजन क्या कर रहा है आने वाले 5 सालों में? देखिए, अभी वी हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। आई बिलीव हमारे पास अभी 6 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास अभी 6 प्रोजेक्ट्स हैं, वो के पास 3 है, होराइजन के पास 3 है। तो आने वाले 2 साल के अंदर माई टारगेट इज़ टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम। एंड व्हेन आई से टू ऑल ऑफ देम मीन्स अगले 2 साल के अंदर वो दे विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ शेप। इसमें से 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके होंगे एंड ग्रुप हाउसिंग विल बी वेरी मच इन द प्रोग्रेस। एंड मैं मतलब मेरे को यही लगता है कि हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स के साथ हमारे शहर की भी इज्जत जुड़ी हुई है। तो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। प्रॉफिट कम ज़्यादा सब होता है, वो चलता है, चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इतना % ही बचना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको अपने द प्लेस वेयर यू लिव इन, दिस इज़ योर होम टाउन, और
तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए. एंड व्हेन आई से कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो दोज बिल्डिंग्स शुड बी यूनिक. उससे आपके शहर का, आपका, आपकी स्टेट का नेशनल लेवल पे नाम होना चाहिए. एंड कर रहे हैं. अगर आज ऋतिक को लेके आए हैं तो वी आर द फर्स्ट वन टू डू इट, बीइंग अ स्मॉल कंपनी एंड देन थिंकिंग अबाउट ऋतिक रोशन. उसको लेके आना, उनके साथ काम करना, उनके साथ खड़े होके वो पिक्चर्स क्लिक कराना एंड उनकी वो शूटिंग्स करवाना. एंड देन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे मेरे पूरे ट्रेड का, चंडीगढ़ का, पंजाब का वो नाम ऊपर होता है. एंड वी आर द ओनली कंपनी पैन ग्लोब इन रियल एस्टेट who has signed Hrithik Roshan, and for the next 2 years he's with us, and God knows after that. And that's really impressive. So basically, you want to leave a legacy behind, and I think this is the best thing someone can do to his, the work he do. It is something that adds value to his, at least उसको satisfaction मिलती है वो चीज़ करके. तो I really feel good about that. कि you are on a right track. Obviously, you are. And apart from that, if you have any message that you want to convey to the audience, you please do that. See, हम अपना अगर एक घर भी बनाते हैं ना, उसको 2 साल एवरेज लग जाते हैं. सो मेरा सबको यही कहना है कि वी आर नॉट डूइंग एनी रॉकेट साइंस, राइट. हम भी आप जैसे इंसान हैं. आपने हम पे ट्रस्ट किया है तो गिव अस गुड अमाउंट ऑफ टाइम. वी आर बिल्डिंग 1000 होम्स. अब मैं 1000 को 2 से गुना नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ 1000 इंटू 5 साल इन टोटलिटी. तो मेरे को 5 साल के अंदर 1000 घर डिलीवर करना है. एंड तो ये 5 साल के अंदर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. उतार चढ़ाव, ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, सब चलता रहेगा. बिकॉज दिस इज अ लाइफ. लाइफ कांट बी हैविंग सेम ग्राफ. मज़ा उसका तब आता है जब वो ऐसे होती है, रोलर कोस्टर, राइट. तो वो रोलर कोस्टर राइड रहेगी. हमारा साथ दो, हम पे ट्रस्ट करो, किसी भी र्यूमर्स पे बिलीव ना करो. आपको कोई बोलता है कि गौरव इज नॉट इन होराइजन, चेक, कम विद गौरव. आपको लगता है कि अंतालिया का ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा या ऐसा नहीं होगा या वो कैसा कर रहा है या होराइजन ऐसा नहीं कर पाएगा, प्लीज डोंट बिलीव इन ऑल दिस. यू हैव ट्रस्टेड अस, नाउ ट्रस्ट अस फुली. Let us deliver these projects. Trust me, the way we have delivered the Simple Residence in the actual tower, all our projects would be delivered in a stage, in a situation जो कि उसके 5 साल तक मेरा कोशिश होगा या हम सबका कोशिश होगा, मेरे सब पार्टनर्स का, कि वो कोई नहीं किया होगा. This is our vision in both the companies कि we want to deliver the finest. Right? So just give us some time. क्योंकि सिर्फ बेचना या प्रीमियम लाना या मार्केटिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है. प्रोजेक्ट को प्लान करना, देयर आर सो मैनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. अब हम वी आर ट्राइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स फ्रॉम लंदन, जर्मनी. अब उन लोगों को समझाना, उनको यहाँ पे लेके आना, प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करवाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो जस्ट गिव एवरीवन अ लॉट ऑफ टाइम. Not just Horizon or Evoke, to all my colleagues, to all my builder friends, कि उन सबको टाइम दो. हम सब सही ट्रैक पे हैं और कुछ अच्छा करेंगे. एंड जो आपने हमें प्रॉमिस किया, जो हमसे यूनिट बाय की है, उसकी पेमेंट आप करें, क्योंकि उसके बिना शायद हम भी इनकम्प्लीट हो जाएंगे. एज आई सेड कि वी आर नॉट टाटा, वी आर नॉट रिलायंस, वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स लाइक यू पीपल आर. जस्ट द लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफर्स. दैट्स इट. No, I'm sure कि जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, जो भी आप पे बिलीव करते हैं, they really trust you, and all the best for all your future prospects. Thank you so much. Yeah, and thanks a lot. I know you are a busy man, so thanks a lot for giving us your valuable time. Thanks a lot. It's my pleasure. Thank you.